Economics chapter number 12, introduction to the study of economics. This is the second part. हम लोगों ने लास्ट फर्स्ट पार्ट में देखा हुआ था, उसके बाद अब ये सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू करते हुए इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इन डिटेल सारी चीज़ें दी गई है. Economic is a vast subject encompassing various topics related to the production, consumption, saving, investment, inflation, employment and unemployment, national income, international trade, quality of life, spatial policy, monetary policy, etc. so on and so forth. The list of unending form the point of view of better understanding of the subject and finding a solution to the problem. It is imperative to know the nature of economic issues under the study and the area of branches under which the issue is dealt with. तो इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं. लाइक यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें दी हुई है, लाइक सेविंग से, कंजप्शन से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे रिलेटेड, इन्फ्लेशन होना, डिफ्लेशन होना, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड. हमने ये सारी चीज़ें इन डिटेल चैप्टर वाइज देखी हुई है, बट यहाँ पे इन सभी का मिक्सचर होकर दिस इज ऑल नोन एज इकोनॉमिक्स. अब ये इकोनॉमिक्स को इन्होंने इन डिटेल बताते हुए लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग. 12.1. The term economics is derived from the two Greek words oikos and nemin, meaning the rule of law of the household. Economics therefore is concerned with not just how a nation allocates its resources to various uses, but it deals with process by which the productive capacity of this resource can be further increased with the factors which is past have lead to sharp fluctuations in the rate of utilization of resources. British economics Robbins has defined economic as follow. अब जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स जो थे, रॉबिन्स ने इसे इस तरीके से एक्सप्लेन किया है that economics is a science which studies human behavior as a relationship between ants and scare means which have alternative uses. अब जो रॉबिन्स है उन्होंने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के बिहेवियर को जानना is the study of economics as a relationship between the ants and scare means which is alternative uses. जो different scare resources के हमने बारे में लास्ट देखा था, उन सारे resources को कितने better तरीके से उसका utilization होना, उनका wasteful uses नहीं, but कितने better तरीके से उन सारे resources को proper way में उसका utilize करना, जिसके वजह से उन सभी को wasteful साबित ना हो but वो fruitful साबित हो. Robbins defined is a comprehensive in explaining the scope of economics. It is the problem of choice, which is all presents in areas of consumption, production and exchange. For example, a consumer has to choose the combination of goods which yield maximum satisfaction. Similarly, a firm has to choose that size of output which ensures maximum profit. Nobel literate Professor Samuelson has explained out economics as follows. ठीक है, तो यहाँ पे नोबेल लिटरेट प्रोफेसर जो थे सैमुअल्स, उन्होंने भी इसको एक अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है. लाइक फॉर एग्जांपल, अ कंज्यूमर हैज टू चूज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स व्हिच यील्ड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. उनके पास डिफरेंट चॉइसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन के पास 10 रुपीस है और उसके पास दो ऑप्शंस है, तो वो हमेशा से ऐसा ही प्रोडक्ट, ऐसी ही चीज को परचेस करेगा जिसकी वजह से उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो. जिस प्रोडक्ट में से उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो उसी चीज के लिए आगे बढ़ेगा, राइट. अगर उसके पास सिर्फ 10 रुपीज ही है, एक टाइम उसको भूख भी लगी है और एक टाइम उसको मूवी भी देखनी है, सो फर्स्ट बेसिक नीड इज कि उसको पहले भूख लगी है तो वो समथिंग, वो 10 रुपए में से कुछ ना कुछ खाएगा, राइट, ना कि मूवी वगैरह के लिए प्लान करेगा. Let us move forward. Economics is a study of how man and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have an alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for a consumption now in the future among various peoples and groups of society. different choices हर एक पर्सन के पास होते हैं, राइट. उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उन्हें डिफरेंट चॉइस के ऊपर कंजप्शन करने के बारे में सोचने का होता है कि कौन से वक्त कौन सी चीज जरूरी है, उस पे कौन से वक्त उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. Let us see the positive and normative economics. अब इकोनॉमिक्स को भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है, पॉजिटिवली एंड नॉर्मेटिव. While discussing the issue related to the economic conditions and trying to find solutions to economic problems, economics often talk about the positive and normative nature of these issues.
जब ये इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में जो सारे इकोनॉमिक्स थे वो लोग डिस्कस कर रहे थे, सो ये कंडीशन के ऊपर सॉल्यूशन लाने के लिए जब उन्होंने सॉल्यूशन लाने का ट्राई किया ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो इकोनॉमिक्स ने क्या देखने मिला, देयर आर पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव नेचर ऑफ दिस इश्यूज। पॉजिटिव भी इश्यूज भी देखने मिले और नॉर्मेटिव भी देखने मिले। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक एनालिसिस व्हिच आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिकल डेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने बताया है, तो वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, एक तो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, जो सारे फैक्ट्स होते हैं, और एक होता है स्टैटिस्टिकल डेटा, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, मतलब उसमें सारे स्टैटिस्टिकल डेटा ही अवेलेबल होते हैं, उसी के ऊपर वो लोग वर्क करते हैं। When an economic phenomenon is being described with a statistical support, then we call it a positive economics. जब वो statistical support की वजह से उसका कुछ problem का solution लाए हैं, so we'll call it a positive economics. So positive economics relates to the phenomenon of what is. On the other hand, normative economics deal with the issue of what of to be. Normative economics is based on value, judgment and debate which are required to arrive at some conclusion. Issues related to the forming policies for the society mostly come under normative economics. ये जनरली किसके अंडर आता है, normative economics में। Issues related to the farming policies of the society. Policies of society ये जनरली normative economics का पार्ट है। Take the example of the issues of India's population. इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करते हैं, it is a fact that as per the 2011 census, India's population was around 121 crores. Since it is based on the data, the statement relates to the positive economics. So ये किसके बेसिस पे है? So ये डेटा के बेस पे है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि this is positive economics। जैसे हमने पहले देखा कि जो भी डेटा है, जो भी वो अगर स्टैटिस्टिकल वे में प्रेजेंट किया गया हो, सो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम फेस ड्यू टू द पॉपुलेशन प्रेशर, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी मेकर्स रिकमेंडेड several solutions such as India should control its population by adopting family planning, etc. Such a thing comes under the normative economics because this can be debate on this policy. अब ये कोई statistical data हमारे पास अवेलेबल नहीं है, राइट। इन्होंने इंडिया का जो प्रॉब्लम है पॉपुलेशन वाला, इसके लिए एक सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन क्या दिया है? सो इंडिया शुड एक्सेप्ट टू अडॉप्ट द फैमिली प्लानिंग। ये चीज को अपनाकर वो इसका सॉल्यूशन लाने के लिए बता रहे हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट। जब हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में उन्होंने बताया हुआ था कि इंडिया की पॉपुलेशन as per the census of 2011, इंडिया की पॉपुलेशन है 121 करोड़ अराउंड, ठीक है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बिकॉज हमारे पास यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है। और यहाँ पे जब यहाँ पे इन्होंने बात की है कि इंडिया की पॉपुलेशन का सॉल्यूशन कैसे लाया जाए, कि ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, तो उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिए रखा है, लाइक दे हैव टू अडॉप्ट, मतलब वी हैव टू अडॉप्ट द फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर। उसमें क्या होगा, इन्होंने ये चीज जो दी है, such a thing comes under the normative economics because this can be debate on the policy। अब ये policies पे debate हो सकता है। There are lot of economic problems faced by the citizen and the economy as a whole. Data are required to justify that a problem exists, which is a part of positive economics. When we try to find solutions to the problem, there will judgments are made and debates take place which comes under normative economics। अब इसी ना ये सारे टॉपिक्स पे जहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ये सारे टॉपिक्स पे क्या होगा, जितना हो सके उतना ज्यादा डिबेट हो सकता है। सो दिस इज ऑल, ये जितने भी सारे सिचुएशंस हैं, तो ये सब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सो यहाँ पे इकोनॉमिक्स को और दो तरीके से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। मतलब जनरली इकोनॉमिक्स आर टू टाइप्स, एक तो माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है। माइक्रो एंड मैक्रो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लेट अस मूव। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक यूनिट और अ पार्ट ऑफ अ कंट्री इकोनॉमी और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मोर देन वन यूनिट। एक यूनिट से ज्यादा, ये मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में बात चल रही है, पर्टिकुलर एक यूनिट और अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी की बात नहीं चल रही है, बट सिर्फ एक पार्ट के बारे में बात चल रही है। सो उसको इन लोगों ने डिफाइन किया है एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स,
ठीक है, डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। अब एग्जैक्टली इसका वर्ड कहां से मिला है? ग्रीक वर्ड है माइक्रोस मीनिंग स्मॉल, उसका मतलब होता है स्मॉल। इट रिलेट्स टू द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स बिहेवियर एंड द रिजल्ट ऑफ सच इंटरैक्शंस इज डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये किसके बेसिस पे उन्होंने बता रखा है? द रिजल्ट ऑफ सच इंटरैक्शन इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस एंड वो कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इसके बारे में। It is thus also called as price theory. इसको हम लोग क्या कहेंगे? Price theory भी जनरली इसको कह सकते हैं। So this is the part of microeconomics. It is the microscope's study of economy which deals with decision making by any individual, firm, household, with respect to matters of production, consumption, determination of prices in the market, determination of wage rate and so on. तो ये सारी चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्या क्या चीजें हैं? So it relates with any individual, firm हो, हाउसहोल्ड की बात हो, विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो, कंजप्शन की बात हो, मतलब कितना कंजप्शन किया है, कितना प्रोडक्शन किया है, डिटरमिनेशन ऑफ प्राइसेस, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है, कितनी रखनी है, ये सारी चीजें भी इसमें आती है इन द मार्केट। डिटरमिनेशन ऑफ वेज रेट, ऑफ पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कितना वेज रेट रखना है, राइट, वी हैव डिस्कस regarding wages, मतलब wages क्या होते हैं, salaries वगैरह, so and so on. The aim is to provide a framework within which the behavior patterns and interrelationship between individual economics unit can be studied and their behavior with regards to production, exchange and distribution of goods and services can be predicted. So, इसमें क्या क्या चीजें इन्होंने एक और बता रखा है? Their behavior with regards to production, exchange and distribution of goods and services can be predicted. Thus, attainment of state or equilibrium form the point of view of individual economic units is main aim in a microeconomics analysis. So, this is all about microeconomics. अब इन्होंने यहाँ पे macroeconomics के बारे में बात की है। Macroeconomics also puts emphasis on behavior pattern and role of firm and individual in income distribution and study of conditions of efficiency in the production and attainment of all over efficiency. अब इसमें all over efficiency के बारे में बात की है कि conditions of efficiency, distribution of income, individual और firm के बारे में। So यहाँ पे all over ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है। Efficiency implies optimum allocation of resources among the consumers and producers so that there is neither excess demand nor excess supply of goods and services. मतलब इसकी वजह से क्या होगा कि ना ज्यादा ओवर इसका डिमांड आएगा और प्रॉपर ज्यादा डिमांड न आने की वजह से क्या होगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रॉपर मेंटेन रहेगा। मतलब जितनी डिमांड आ रही है उसके हिसाब से मार्केट में सप्लाई चलता रहेगा। सो ज्यादा भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा, एक प्रॉपर पैटर्न में चलता रहेगा। Efficiency implies on optimum allocation of resources, प्रॉपरली हर एक रिसोर्स का, हर एक रॉ मटेरियल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, राइट, किसी का भी ज्यादा वेस्टेज ना हो, उस चीज पे ध्यान रखते हुए द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सो दैट देयर इज नाइदर एक्सेस डिमांड, ना ज्यादा डिमांड क्रिएट हो, ओके, और नॉर एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द एनालिसिस ऑफ द three central problems of economy, what goods and services to be produced, मतलब this is the main problem of any issue, ठीक है, central problem of economy का सबसे central problem अगर देखने जाए तो यही है that what should be produced, how to produce them, अब उनको प्रोड्यूस कैसे किया जाए। पहले तो क्वेश्चन ये था कि क्या प्रोड्यूस करना है, राइट, अब ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि उसको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस देम एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी, और उसको फिर प्रोड्यूस करने के बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए इन द इकोनॉमी, आर ऑल सब्जेक्ट द मैटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। So हमने माइक्रो देखा, let's move macroeconomics is a branch of economics that deals with the economic aggregates of country as a whole. The word macro is derived from the Greek word macros meaning large. वहाँ पे हमने micros देखा था जिसका meaning small था, यहाँ पे है macros जिसका meaning है large. It has emerged after the British economics John Maynard Keynes published his famous book The General Theory of Employment, Interest and Money
in 1936। ये जनरली जब ये इकोनॉमिक्स जो थे उन्होंने जब बुक लॉन्च की, मतलब उन्होंने बुक्स पब्लिश की, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936, तब ये इसका वर्ड फाइंड आउट किया गया, देखा गया। The Great Depression of 1929 made economics think about the subject in a never way, which was holistic and microeconomic study developed। ठीक है, it is also called the theory of income and employment। Generally इन्होंने जब ये बुक लिखी, the general theory of employment, interest and money, तो इसके बेसिस पे जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने सोचा, राइट, कि was the holistic and macroeconomic study of development, it is also called the theory of income। theory of income और employment के बारे में वो पूरा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दे रखा था। The content of microeconomics analysis involved a combination of unit to get a complete picture of economic system as to deal with economic affairs at a large scale। large scale पे जो भी economic affairs देखने मिलते हैं, ये सब पार्ट किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का। ठीक है, ये सब कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स टू गेट कंप्लीट पिक्चर, एक प्रॉपर पिक्चर हमें देखने मिले, प्रॉपर पूरा डेटा हमें देखने मिले, पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पूरा जानना मिले। सो इट डील्स विद इकोनॉमिक अफेयर्स एट अ लार्ज स्केल, बड़ी स्केल पे हम लोग ये सारी चीजें, सारा डेटा देख पाते हैं। The focus areas are aggregate economic variables of economy, the component of output, price level and employment operate in the economy stimultaneously, which indicates that they bear a close relationship with each other। ठीक है, that forms the basic macroeconomic study which attempts to analyze the attributes together। It sees the economy as a combination of four components। First is household, second is firms, government and external factors। This is an important part। हाउसहोल्ड के बारे में सारी चीजें आ जाती है, फर्म किसी भी स्मॉल या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, फिर या एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं बट एक्सटर्नल सेक्टर्स के बारे में। ठीक है, इसके अलावा के बाहर के जो एक्सटर्नल सेक्टर्स होते हैं उसके बारे में। द स्टडी एरिया इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ इफेक्ट्स इन अ मार्केट ऑफ टैक्सेशन, budgetary policies on the money supply, role of state, rate of interest, wages, employment and output। ये सारी चीजों के बारे में भी, ये भी सब इसी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्या है, the study area involve analysis of effects in a market। किसके किसके effects, ये सारी चीजों के effects, therefore called as income theory। इसके वजह से ये सब किससे रिलेटेड है, इनकम थियरी के रिलेटेड है। As it is concerned with the economy as a whole, as seek to study the cause and solutions for the economic issues such as unemployment, inflation, balance of payment defects and so on। इतनी सारी चीजों के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी इसका causes, solutions फाइंड आउट करना है, इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में भी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी, ये सारी चीजें इसका पार्ट है। Interdependence of macro and microeconomics। Microeconomics and macroeconomics are two parts of economics, but they are not mutually exclusive। ये different part है, but ये mutually exclusive नहीं है। In other words, they are interrelated। वो समझ ये सब बता रहे हैं कि interrelated भी है, interrelated भी है। A close interlink exists between macro and microeconomics। All microeconomic studies can help in better understanding and analysis of macroeconomics variables। macroeconomics variables को betterly समझने के लिए, उसको analysis करने के लिए microeconomics जो है वो helpful है। Such studies also help in the formulation of economic policies and programs। economic policies और programs के conduct करने के लिए ये policies को अपनाया जाता है, ये helpful रहते हैं। As you know that the changes and process in an economy are resulted of variety of large and small scale elements which have a capacity to affect each other and are so affected by each other। For example, increased taxes are macroeconomic decision, but the impact on saving of a firm is a micro analysis। ठीक है, ये taxes जो बढ़ रहे हैं, increase in the taxes, ठीक है, ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन का पार्ट है, बट उसका इम्पैक्ट कैसे होगा सामने, तो सेविंग ऑफ अ फर्म्स जो है, फर्म की जो सारी सेविंग्स है उस पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह इसका इफेक्ट देखने मिलता है।
Further, how this saving impacts the economy is a microeconomics analysis. ठीक है, so इस तरीके से इसका impact देखने मिलता है. Take another example. If we know how the price of commodity is determined and understand the role of buyers and sellers in the process of price determination. अब बायर और सेलर का कैसा और दोनों का ये क्या कैसा रोल्स मतलब उन्होंने बताया हुआ है. If we know how the price of a commodity is determined and understand the role of buyer. ठीक है, अब role of buyer and seller in the process of price determination. वो लोग कैसे प्राइस डिटरमाइन करते होंगे, मतलब एक मेन जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसके पास से मीडिएटर्स के पास, बाद में रिटेलर्स के पास, होलसेलर, रिटेलर ऐसे आते होते, ये मतलब ये किस तरीके से इसका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, डिटरमिनेशन होता होगा. इट वुड हेल्प अस इन एनालाइजिंग द चेंजेस दैट प्लेस इन द जनरल प्राइस लेवल. ठीक है, ये हमें हेल्पफुल रहेगा कि हम लोग को जनरल प्राइस लेवल इससे पता चलेगा. फॉर ऑल द कमोडिटीज एज अ होल इन द इकोनॉमी, अ स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन एंड the role of buyers and sellers in the process is a microeconomics. अब role of buyers and sellers जो है price determination में, इसमें क्या है, ये इनका रोल क्या है, माइक्रोइकोनॉमिक्स का भाग है. स्टडी, whereas the study of general price level in the economy is a macroeconomics. अब general price level जानना, स्टडी करना इसके बारे में, वो किसका पार्ट है, is the economy of macroeconomic study. Similarly, if we want to assess the performance of an economy, we will have to find out the performance of each sector of economy, and to find out the performance of each sector, we will have to find out the performance of each production unit individually or in a group. If we want to assess the performance of any economy, we will have to find out the performance of each sector. मतलब हमें ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस इकोनॉमी का देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का, इकोनॉमी के हर एक सेक्टर का आउटपुट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर के हमें परफॉर्मेंस के बारे में जानना पड़ेगा ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. उसके बारे में जानेंगे इन डिटेल, उसके ऊपर सर्च करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, किस पे वी विल हैव टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच प्रोडक्शन यूनिट. प्रोडक्शन यूनिट के बारे में हमें जानना पड़ेगा इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स में या इंडिविजुअली इन लोगों के बारे में पता चलेंगे तो हमें ओवरऑल पता चलेगा. अ स्टडी ऑफ ईच ग्रुप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट और ऑफ ईच सेक्टर इज अ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी. अ स्टडी ऑफ ईच ग्रुप के बारे में लोग ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट के बारे में अगर सर्च आउट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलेगा. स्टडी वेयर द स्टडी ऑफ ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स और ऑल सेक्टर्स टेकन अदर together is a microeconomic study. Thus, microeconomics and macroeconomics are two interrelated parts of the economics. Micro and macro are two interrelated parts of the economics. ये interrelated parts मतलब somewhere इसका अफेक्ट इस पे देखने मिलता है. मैक्रो के जो भी सारे डिसीजंस होंगे उसकी वजह से, मैक्रो पे जो भी सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसकी वजह से समवेयर इसका कुछ ना कुछ माइक्रो इफेक्ट्स देखने मिलते हैं. डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस इन अ स्केल ऑफ अ स्टडी के स्केल के बारे में. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स व्हाइल माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स. Macroeconomics is related to the study of aggregates. ठीक है, एग्रीगेट्स के बारे में सर्च करना हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. व्हाइल माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ये मैक्रो था, ये माइक्रो है, रिलेट्स टू द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट. इंडिविजुअल के बारे में बात चल रही हो तो वो माइक्रो का पार्ट है. ठीक है, डिफरेंसेस इन द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस कंसर्न विद द broadest level of policies pertaining to the income, employment, growth of resources. ठीक है, ये सारा इसका पार्ट है. किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का. कंसर्न विद द broadest level of policies. ठीक है,
अब माइक्रो क्या बताया हमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्राइस डिटरमिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? वो किससे? क्योंकि ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कौन सा रिसोर्स कौन सी जगह पे यूज करना चाहिए जिसकी वजह से उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, उसका वेस्टफुल ना हो, इसलिए उसको कौन सी जगह पे यूज करना चाहिए वो, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्राइस डिटरमिनेशन, प्राइस डिटरमाइन करना, ये सब किसका पार्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। Resources and economic activities such as price determination किसका पार्ट है? ये पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे है differences in the importance given to the price and income concept। इनकम और प्राइस, एक प्राइस किसी प्रोडक्ट की और एक इनकम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन इंपॉर्टेंट गिवन टू द प्राइस एंड इनकम कॉन्सेप्ट देखते हैं। Microeconomics analysis focuses on the price determination. Microeconomics analysis focuses on the price determination in the market for goods and services, while microeconomics is focuses on income determination in the economy as a whole. Microeconomics किसका पार्ट है? Focuses on income determination, income determine करनी हो तो, और microeconomics किसका है? प्राइस डिटरमिनेशन के लिए है, ठीक है। एवरीबडी एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज हैज इट्स मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट विथ वन अदर टू डिटरमाइन इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट के लिए क्या एक स्पेसिफिक मार्केट है, ठीक है। वो मार्केट में क्या होता है? सेलर्स इंटरैक्ट, बायर्स एंड सेलर्स दोनों क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे की कन्वर्सेशन, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, उसके बारे में एक दूसरे को पूछता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज परचेस करने गए हैं, ठीक है, दुकान पर, हम लोग क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे। हम लोग एज ए बायर, वो एज ए सेलर, हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं विद वन अदर टू डिटरमाइन इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी। उसके बारे में, प्राइस के बारे में पता करेंगे, उसकी क्वांटिटी क्या है उसके बारे में पता करेंगे। सिंस डिसीजन आर टेकन बाय इंडिविजुअल बायर, डिसीजन कौन लेगा? हम लोग लेंगे, क्योंकि कौन सी पर्टिकुलर चीज को हमें परचेस करना है। Who demand the goods and the seller who supply the goods, जो डिमांड करता है, जो सप्लाई करता है। It form the part of microeconomics, ये सब किसका पार्ट है? माइक्रोइकोनॉमिक्स का पार्ट है। On the other hand, determination of income of entire economy involves mobilization of resources by all the sectors of economy taken together. So it is form the part of microeconomics, ठीक है। On the other hand, determination of income, income को determine करना, income को determine करना of entire economy, पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में, पूरी की पूरी इकोनॉमी की इनकम को डिटरमाइन करना इन्वॉल्व्स मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या करता है? क्या इन्वॉल्व करेगा? डिफरेंट रिसोर्सेज जो है उसका मोबिलाइजेशन देखने मिलेगा बाय ऑल द सेक्टर्स, सारे के सारे सेक्टर्स थ्रू ऑफ द इकोनॉमी टेकन टुगेदर। ये सारे के सारे सेक्टर्स को लाना पड़ेगा, डिफरेंट सेक्टर्स को, वो सारे के सारे रिसोर्सेज थ्रू हम लोग क्या करेंगे? इनकम, एंटायर इकोनॉमी के इनकम के बारे में जानेंगे, ऑफ द इकोनॉमी टेकन टुगेदर, साथ में लाकर देखेंगे। सो इट इज अ फॉर्म पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये बड़े लार्ज स्केल पे देखने मिलता है, इसलिए। डिफरेंसेस इन द मेथड्स ऑफ स्टडी। Microeconomic study is dominated by the method called partial equilibrium analysis. Partial equilibrium analysis, which is focused on significant factors related to the economic activity. Economic activity से related हो वो। Under the macroeconomic, the mutual dependence of important economic aggregates is studied, and this is called quasi general equilibrium analysis. इसको ये नाम देते हैं, मतलब जो इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता हो
द म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक एग्रीगेट जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट जो रहते हैं, डिपेंडेंस स्टडी, ये स्टडी किसकी है, इज द क्वेजी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है। और ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस व्हिच इज फोकस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, कुछ ही फैक्टर्स के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये कुछ लिमिटेड मतलब कुछ ही सेक्टर्स के ऊपर हम लोग अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर जान रहे हैं उसके बारे में कुछ फोकस करके हम लोग उसमें कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ किसके बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। Difference in analytical factors. Microeconomics deal with the study of behavior of economic variables in an equilibrium position. Equilibrium position में economic factors के बारे में, economic variables के behavior के बारे में हम लोग डील करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। Position, while macroeconomic analysis deals with the study of a behavior of economic aggregators is a disequilibrium position. तो ये क्या है, disequilibrium position है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में है। Deals with the study of behavior of economic variables in an equilibrium position पे, ठीक है। और ये जो है behavior of economic aggregates is a disequilibrium position. Significance of macro and microeconomics. Both the branches of economic analysis are complementary and supplementary to each other. Complementary भी है, supplementary भी है. The applied aspects of this relate to the field of economics and commerce. इसमें economics भी आ गया, commerce भी आ गया. The significant areas of microeconomic analysis lies in the agriculture economics, ठीक है। जनरली ये किसमें देखने मिलता है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर इकोनॉमिक, कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक, रीजनल इकोनॉमिक, एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अदर फील्ड्स, ठीक है। The significant areas of microeconomic analysis lie in, ठीक है। अब माइक्रोइकोनॉमिक्स कौन से एरियाज में हमें सिग्निफिकेंट एरियाज में देखने मिलता है एनालिसिस करते वक्त, तो एक एग्रीकल्चर का एरिया है, लेबर रिलेटेड अगर कुछ इकोनॉमिक्स हो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में, कंज्यूमर के बारे में कुछ भी हो, कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में हो, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के मतलब वेलफेयर करने के लिए इकोनॉमिक्स के बारे में, रीजनल किसी चीज के इकोनॉमिक के बारे में अगर पता कर रहे हैं, या फिर पब्लिक फाइनेंस, उसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। मैक्रो की बात करें तो स्टडीज आर अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसके वजह से बड़ी पॉलिसीज ऐसी जिसकी वजह से बहुत सारा चेंजेस देखने मिले, लेकिन इकोनॉमी जो है वो डेवलप पोजीशन पे देखने मिले, वो सारी की सारी फॉर्मुलेशन करना, उनको फॉर्मेट में डालकर उसका फॉर्मुलेशन करना, एग्जीक्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, अंडरस्टैंडिंग माइक्रोइकोनॉमिक्स, स्टडीइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टडीज, welfare studies, inflation, deflation studies, international comparison as well. इतनी सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होती है। स्टडीइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेलफेयर देखना, इन्फ्लेशन देखना, डिफ्लेशन देखना एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन देखना।